दीदी नमस्ते। हाँ, नमस्ते रूपा। थोड़ा वेट करेंगे अभी 1-2 मिनट। जी जी। आज हम लोग वैसे 25 नहीं नहीं 25 से तो आगे आ गए थे। नहीं नहीं, 25 नहीं, अभी आज मेरे ख्याल में पढ़ना है हमें 30th। 30। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, कोई और आ जाएगा तो अच्छी बात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो अभी चल रहा था ना कि विदुर जो है उनको समझा रहे थे, धृतराष्ट्र को। जी। तो जो लास्ट श्लोक था कि उसके अंदर में कि भाई धृतराष्ट्र जो है मतलब उनसे तुरंत उनका एनलाइटनमेंट हो गया और हाँ। उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के लिए निकल पड़े ओके। हाँ। विदुर के साथ में। और अब बता रहे हैं उनकी पत्नी के बारे में, गांधारी पर। तो टेक्स्ट 30 पढ़ो तो जी। है। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं प्रहर्षम मनिष्कं नामिव सप्त स संप्रहारः। Translation. The gentle and the chaste Gandhari, who was the daughter of King Subala of Kandhar, followed her husband, seeing that he was going to the Himalaya mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of the renounced order like fighters who have accepted a good lasting from the enemy. Purport. Saubalini or Gandhari, daughter of the King Subala and the wife of the King Dhritarashtra, was ideal as a wife devoted to her husband. The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. Lakshmi ji Sita Devi was also a daughter of a great king, but she followed her husband Lord Ramachandra into the forest. Similarly, as a woman, Gandhari could have remained at home or at her father's house, but as a chaste and gentle lady, she followed her husband without consideration. Instructions for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra by Vidura, and Gandhari was by the side of her husband. But he did not ask her to follow him because he was at that time fully determined, like a great warrior who faces all kind of dangers in the battlefield. He was no longer attracted to so-called wife or relatives, and he decided to start alone. But as a chaste lady,
ये जी आपके चेस्ट का क्या मतलब है? चेस, चेस का मतलब पवित्र, मतलब जो है जी। पवित्र। Yeah. But as a chaste lady, Gandhari decided to follow her husband till the last moment. Maharaja Dhritarashtra accepted the order of the Vanaprastha, and at this stage of life, he allowed to remain as a voluntary servitor. But in the sannyasa stage, no wife can stay with her former husband. A sannyasi is considered to be a dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former husband. Maharaja Dhritarashtra did not deny his faithful wife, and she followed her husband at her own risk. The sannyasis accept a rod as a sign of the renounced order of life. There are two types of sannyasis: those who follow the Mayavadi philosophy headed by the Sri Pada Sankaracharya, accept only one rod, ek dand. But those who follow the Vaishnavite philosophy accept three combined rods, three dand. The Maya Vedi sannyasis are ekadanti swamis, एक ekadanti दंडी, एक दंडी। Ekdandi Swamis, whereas the Vaishnava sannyasis are known as the Tridandi Swamis, or or more distinctly Tridandi Goswamis, in order to be distinguished from the Maya Devi philosophers. The Dandi Swamis are mostly found of the Himalayas, but the Vaishnavi sannyasis are found in the Vrindavan and Puri. The Vaishnava sannyasis are Narottamas, नरोत्तम। uh, Narottam, and whereas the Maya Devi sannyasis are धीराज, Dheers. धीराज, Maharaja धीर। Dhritarashtra, हम्म। अच्छा Dheers, Maharaja Dhritarashtra was advised to follow the Dheers because at that stage it was difficult for him to become a Narottam. तो बता दिया, मतलब जो गांधारी थी बड़ी चेस्ट लेडी थी, Hmm. वर्तमान में संन्यास में। वो उन्होंने, मतलब नाउ देवर रिक्वायर्ड, मतलब उनका हस्बैंड से अब कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाता है, तो वो आगे Hmm. भी चल रहे थे, वो मतलब पीछे 10 कदम, मतलब विदाउट एनी कनेक्शन, बट जस्ट शी फॉलोड ए सन्यासी। चलो आगे Hmm. वाला हम पढ़ते हैं। जी। तो इसमें सब बता ही दिया उन्होंने, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जी, हाँ मेरे हाँ, ख्याल से पूछो, यस। हाँ क्लैरिफाई करना होगा कि जैसे हाँ धृतराष्ट्र जी को विदुर जी तो काफी स्टार्टिंग से हर उनकी गलती पर टोकते आ रहे थे, क्योंकि वो तो हाँ विदुर थे। लेकिन हाँ, तब बिल्कुल ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक। हाँ उनके माइंड में तब तक वो बातें ना एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। हाँ जैसे है ना, हाँ अभी भी हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने वही कलेक्शन ऑफ नॉलेज इनको रीएड्रेस किया, मगर अब उनके दिमाग में क्लैरिटी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी निकल करके आता है कि लॉसेस हमारे अंदर एक टाइप ऑफ जो दुख या जो कहना चाहिए ना, वो पैदा करते हैं कि हाँ, उनके जो कॉन्जिक्यूटिव सारे लॉसेस थे, 100 पुत्र मारे गए, उनका जो मेन डियर पुत्र दो थे वो मारे गए, तो उनको अब ये बातें वाकई में फॉलोएबल लग रही हैं जो अब विदुर उनसे कह रहे हैं। ये तुम्हारी बात काफी हद तक सही है, लेकिन एक और बड़ा सा क्या नाम है, मतलब एक और जरा थोड़ा हम लोग समझते हैं म्यूचुअली। हम्म। एक तो धृतराष्ट्र जो थे ना उस समय बहुत ज्यादा क्या नाम है, मतलब माया की गिरफ्त में थे पूरे टाइम। हम्म। वो कष्ट से उनका तो डेफिनेटली उनको मतलब उनके अंदर में चेंज आया होगा, नंबर वन। मे बी स्पेकुलेटिव ओनली। दूसरी हम्म। चीज जो बहुत बड़ी है, जो कि बाद में भी बताएंगे प्रभुपाद शायद अपने परपोर्ट में, हम्म। कि विदुर जो है ना, जब वो उनको दुर्योधन ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो मना कर रहे थे कि भाई ये सब काम मत करो तुम, इनका राज्य पाट उनको लौटा दो जैसा तुमने प्रॉमिस किया था। हम्म। तो दुर्योधन ने उनको क्या नाम है, मतलब अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया था, हम्म। है ना। तो फिर वो 1 साल तक घूमते रहे थे। इसी बीच में महाभारत हो गई, लेकिन उन्होंने मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया था। हम्म। मैत्रेय ऋषि से, तो वो जो थे ना, वो मतलब तब फिर वो प्योर डिवोटी हो गए थे जब लौट के आए थे। तो अच्छा। एक प्योर डिवोटी के समझाने का बहुत डिफरेंट असर होता है। बिल्कुल, प्योर हाँ। डिवोटी के प्रेजेंस इटसेल्फ जो है बड़ा प्यूरिफाइंग होता है।
इसीलिए बार बार ये मतलब प्रभुपाद और हर एक आदमी प्रसन्न, मतलब वो एम्फसाइज करता है कि डिवोटी साधु संग जो है, साधु हम्म, संग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्या नाम है, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में। और हाँ स्पिरिचुअल जर्नी के अलावा और कोई जर्नी है नहीं इस भौतिक संसार में, वो अदरवाइज तो फिर आप घूमते ही रहोगे, है ना। तो जी। ये मैं जो तुम्हारा सवाल है, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ इसका जवाब में कि अब उनको, एक तो उनको बहुत कष्ट हुआ था, ये बहुत हम्म। फर्क था। और दूसरा, अब उनको एक प्योर डिवोटी से नॉलेज मिली। हाँ इस हाँ दोनों चीजों का मिला करके बहुत तगड़ा असर हुआ। जी। और जहां तक मतलब ये जो जैसे वरुण आज है नहीं, लेकिन क्या वो उन्होंने काफी पढ़ा हुआ है इसके बारे में हम्म कि जो आदमी मटेरियली ओपुलेंट है ना, वो भगवान के बारे में नहीं सोच सकता। हम्म जो आदमी कर्म है मतलब ना, तो वो तो माया की गिरफ्त में है, उसको क्यों समझ में आएगा। वो हम्म तो सोच रहा है कि मैं तो बड़ा खुश हूं, मुझे क्या जरूरत है। तुमने इंद्र का ही नहीं देखा। और हम्म आदमी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मटेरियली ओपुलेंट समझ सकता है। हम्म इसीलिए दया दान तप और क्या नाम है, दान और तप दोनों का क्या नाम है, तपस्या और दान दोनों का बड़ा तगड़ा क्या नाम है, मतलब जरूरत होती है दान बीच बीच में। ये नहीं हम्म है, नॉट फॉर द क्या नाम है, मतलब ये नहीं जो सतोगुण वाला दान नहीं, हम्म बट क्या नाम है, इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। हम्म ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम्म महाप्रभु ने कहा ना कि यारो यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञान गुरु हंस तारा ई देश। मतलब ये हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं ना, और हम्म अगर हम लोग मानते हैं इन सब चीजों को, तो हमारा फिर ये कर्तव्य बन जाता है कि हम जिसके भी संपर्क में आए उसको कर्म है भगवान का संदेश दें, कुछ नहीं हो तो महामंत्र के बारे में ही बताएं। तो हम्म ये वैसे थोड़ा सा हो रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आगे भी आएगा, चलो अभी पढ़ेंगे तब आएगा है। जी। ठीक है ना, ये सब चीजें आएंगी तो प्रभुपाद से सुनो और उनकी बातें, मतलब उनके परपोर्ट पढ़ो, तो उसके हम्म अंदर से जो आए वही ट्रुथ है। वही हम्म जो है ना, मतलब जो कि एक प्योर डिवोटी के मुंह से जो कही हुई बात है, बस हम्म वही है। बस बाकी क्या नाम है, जो डिसाइक्लिक सक्सेशन में जो आते हैं ना, परंपरा सिस्टम में, वो जो हम्म होते हैं ना, वो भगवान के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना। हम्म, वो जी। भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आगे वाला हम पढ़ते हैं या मैं पढ़ चुका हूँ? नहीं, मैं पढ़ना है। अजात शत्रु, नहीं तुम पढ़ लो राधा, अगर राधा अगर तुम जी इफ पढ़ यू, लेंगे। हाँ जी 31। जी। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रांत्वा तिलगो भूमि रूप में ग्रहम प्रविष्टो गुरुवंदनाय च चापश्य पितरो सोवलीं च। Translation. Maharaja Yudhishthir, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to the sun god, and offering obeisance, grains, cows, land, and gold to the Brahmanas. He then entered the palace to pay respect to the elderly. However, he could not find his uncle or aunt, the daughter of King Subala. Purport. Maharaja Yudhishthir was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties for the householders. The householders are required to rise early in the morning and after bathing they should offer respect to the deities at home by prayer, by offering fuel in the sacred fire, by giving the brahmanas in charity land, cows, grains, gold, etc., and at last offering to the elderly members due respect and obeisance. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by
book knowledge. Modern householders are practiced to different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned above. The household children are taken to practice what the parents practice, and therefore the whole generation glides towards hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. Like Dhritarashtra, the materialistic person may take lesson from sadhu like Vidura and thus be cleansed of the effects of modern life. Maharaja Yudhishthir, however, could not find in the palace his two uncles, namely Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari, the daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjay, the private secretary of Dhritarashtra. हाँ, तो फिर देखो ना, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भाई उस टाइम में मतलब जो गृहस्थ होते थे वो क्या क्या करते थे। मतलब अर्ली मॉर्निंग में उठ करके पहले पूजा वूजा पूजा वगैरह करके दान वगैरह करके फिर अपने पेरेंट्स के पास में जा करके देखते थे, उनका समाचार लेते थे। तो ये चीज आज मतलब मे बी बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन जैसे तुम्हारे हमारे जैसे लोग हैं, ये की ड्यूटी की है कि अगर घर में उनके अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, इन लॉज के साथ रह रहे हैं एल्डरली, तो फिर वो उनको जा करके पूछें सुबह सुबह जब भी उठ के क्रम है, जा करके पूछें कि भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड ऑल दैट, बिकॉज इसका आपके बच्चों पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई युधिष्ठिर जो है जो वो ही कुड नॉट फाइंड हिज 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 एल्डर अंकल एंड ऑन्ट, तो वो जो थोड़ा परेशान हो गए। आगे जी हम हैं जी टेक्स्ट 32। तत्र संजय मासीनम पप्रच्छोदीर्घ मानसः गावल्व गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। Maharaja Yudhishthir, full of anxiety, turned to Sanjay, who was sitting there, and said, "O Sanjay, where is our uncle, who is old and blind?" संजय से पूछा, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, तो आपको याद होगा कि संजय जो है ये वही हैं जिनको दिव्य दृष्टि मिली थी और इन्होंने पूरे महाभारत का मतलब वृत्तांत सुनाया था उनको, एज का नाम है मतलब लाइव लाइव स्ट्रीमिंग फॉर धृतराष्ट्र। टेक्स्ट 33 भी मैं पढ़ लेता हूँ, है। जी अम्बा च हत पुत्रात्रा पृथ्वी वह क्व गतः सुहृत अपि मय कृत्य प्रज्ञे हत बंधु स भार्यया अंश समान शमलम गंगया दुखितो पतत। Where is my well-wisher uncle Vidur and mother Gandhari, who is very afflicted, due to her son's demise? My uncle Dhritarashtra was also very mortified due to the death of all his sons and grandsons. Undoubtedly, I am very ungrateful. Did he therefore take my offences very seriously and along with his wife drown himself in the Ganges? Purport. The Pandavas, especially Maharaja Yudhishthir and Arjun, anticipated the effects of the battle of Kurukshetra, and therefore Arjuna declined to execute the fighting. The fight was executed by the will of the Lord, but the effect of family agreements, as they had thought of it before, had come to be true. Maharaja Yudhishthir was always conscious of the great plight of his uncle Dhritarashtra and aunt Gandhari, and therefore he took all possible care of them in their old age and aggrieved conditions. When, therefore, he could not find his uncle and aunt in the palace, naturally his doubts arose, and he conjectured that they had gone down to the water of the Ganges, and he thought himself ungrateful because when the Pandavas were fatherless, Maharaja Dhritarashtra had given them all royal facilities to live, and in return, he had killed Dhritarashtra's sons in the battle of Kurukshetra. As a pious man, Maharaja Yudhishthira took into account all his unavoidable misdeeds, and he never thought of the misdeeds of his uncle and company. Dhritarashtra had suffered the effects of his own misdeeds by the will of the Lord, but Maharaja Yudhishthira was thinking only of his own and unavoidable misdeeds.
That is the nature of good man and a devotee of the Lord. A devotee never finds fault with others, but tries to find his own and thus rectify them as far as possible. तो यहाँ पर पायस नेचर ऑफ युधिष्ठिर का बता रहे हैं भाई कि वो जो है ना, he did not, पहली बात तो he always felt grateful, but yet because it was the will of the Lord they fought in the battle of Mahabharat, and he and his brother Arjun, they killed all his sons and all that. But क्या नाम है, at the end of the day the Maharaja Dhritarashtra, he never thought क्या नाम है about the misdeeds of his elder uncle. He only thought of his own reactions of the killing. So here in the end जो प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि डिवोटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. That he is never, you never find fault in others, by corollary that he only sees the good part of the other person, है ना, and he only sees fault in himself and good in others. तो ये जो है हम लोगों को, अगर हम इसको क्या नाम है देखें, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई अगर ये हम लोग प्रैक्टिस में लाए ना तो काफी शांति मिल सकती है. नहीं, बड़ी मतलब बात है. अदरवाइज क्या है कि आप फिर वो क्या नाम है बदले की आग में जलते रहेंगे, और बदले की आग में जलने का तो बहुत 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 वैसे काफी सेइंग्स हैं कि अगले बंदे को तो पता भी नहीं है, ही डज नॉट इवन नो कि क्या हो रहा है. और वो जो है आप जो हैं उसकी, यू आर बर्निंग, इट इज लाइक होल्डिंग burning coal in your hand. You throw it at the other person, but till if you are at all able to throw it to him, on him, वो उस टाइम तक तो आपका हाथ जलता ही रहेगा ना. समथिंग लाइक दैट करम, देयर इज अ सेइंग. तो आगे पढ़ो भाई करम, तुम रूपा तुम पढ़ो, अगर अनलेस यू हैव ए क्वेश्चन. या पितरे उपारते पांडु सर्वान् नः सह सहर्दहाः शिशून् अरक्षतां वैष्णता पृथिव्यो कव गतावितः. When my father Pandu fell down and we were all small children, these two uncles gave us protection from all kinds of calamities. They were always our good well-wisher. Alas, where have they gone from here? Next part. 35 पढ़ लो. ओके. सूत उवाच कृपया स्नेड हवे कलव्योत्सुतो विरहे कर्षितः आत्मरेश्च रमणेश्च क्षणो न प्रत्याहति पीड़ितः. Sutta Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjaya not having seen his own master, Dhritarashtra was aggrieved and could not properly reply to Maharaja Yudhishthira. Purport: Sanjay was the personal assistant of Maharaj Dhritarashtra for a very long time, and thus he had an opportunity to study the life of Dhritarashtra. And when he saw at last that Dhritarashtra had left home without any knowledge, his sorrows had no bound. He was fully compensate without Dhritarashtra, because in the game of the battle of Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money, and at last the king and the queen had to leave home in utter frustration. He studied the situation in his own way because he did not know that the inner vision of Dhritarashtra has been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. Unless one is convinced for a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress and staying out of the home. हाँ. अब आप हाँ मतलब हाँ बताओ बताओ बताओ.
ही इन्होंने जो बताई है कि हम्म। संजय नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो वो कमाल विदुर जी की बातों ने धृतराष्ट्र जी की आत्मा पे किया, और तब वो एक तरीके से शुद्ध बुद्धि से अपने एक बेटर फ्यूचर को देख पाए और गॉड विजन को समझ पाए और उधर की तरफ वो उन्मुख हो पाए कि हाँ अब मुझे ये सब छोड़ के मेरे लिए अभी भी एक बेटर रास्ता। ये होता भी है कि जैसे कोई बहुत विकराल स्थिति हम लोगों को परेशान कर रही हो, मन उसी चीज की उधेड़ बुन में लगा रहता है, लेकिन जैसे कोई आकर सही बात समझा दे, है ना, तो फिर उस कैलेमिटी से निकल करके क्या बेटरमेंट आप अपना कर सकते हैं, उसके बाद हमको कैसा फील, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं अब काइंड ऑफ सुख ही कर रहा है। कोई मायावी सुख होते हैं, कुछ आध्यात्मिक सुख होते हैं, मतलब मैं उसे भी आध्यात्मिक सुख ही कहूंगी। तो वो फिर हमारे अंदर एक चीयरफुलनेस और एंथुजियाज्म पैदा करते हैं और एक एंडोवर करने का भी टूवर्ड्स दैट लाइन एक साहस देते हैं, which I am feeling that Radha Dhatras was feeling after discussion or guideline by Vidur ji. हाँ मतलब ये जो है तुमने कहा वो यस टू सम एक्सटेंट, यस वेरी राइट। मतलब जब वो विदुर जी जो है सबको टीचिंग दे रहे थे तो संजय उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, तो वो भी वो बगल में बैठे होंगे, लेकिन क्या नाम हम्म, है, वो क्या नाम है मतलब वो नहीं पकड़ पाए इस चीज को, ही कुड नॉट बिकम चीयरफुल। तो हम्म, ही कुड नॉट, अदरवाइज वो फिर उनके उसमें मतलब इतना दुखी नहीं होते कि भाई मेरा मास्टर चले गए। प्लस क्या नाम है मतलब तो ही ऑल्सो डिड नॉट नो, क्योंकि क्या नाम है कि भाई वो जो इनका एनलाइटनमेंट हो गया। और नंबर टू जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो वैराग्य जो है ना वो आर्टिफिशियल वैराग्य बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम्म, अनलेस यू आर फुल्ली मतलब अनलेस यू बिकम कन्विंस्ड एंड यू इफ यू थिंक कि क्या नाम है मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड्स बेटर लाइफ। बेटर लाइफ का मतलब क्या है? दैट यू आर अप्रोचिंग द सुप्रीम लॉर्ड, यू आर इन टच विद हिम। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दिस वर्ल्ड इज बिकम यूजलेस फॉर यू। सो यू आर ऑलरेडी क्या नाम है, तो फिर यहाँ पर रह करके क्या नाम है क्या फायदा है ना? और ये जो है ना हर एक के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए नहीं है। जो जो वान इवन जो वो है ना मतलब जो वर्णाश्रम है उसमें भी आपको 25 साल तक तो क्या नाम है ब्रह्मचर्य का करना चाहिए, 50 साल तक क्या नाम है, उसके अंदर करना चाहिए। और उसके बाद फिर वैराग्य की तरफ जाना चाहिए, मतलब वानप्रस्थ एंड संन्यास एंड ऑल दैट। बट वो आजकल पॉसिबल नहीं है। बट कम से कम आफ्टर जो 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 एक तो पहली बात है आपको पूरे टाइम यू हैव टू डेवलप स्पिरिचुअलिटी, मतलब द अर्लियर द बेटर। हम्म, बट क्या नाम है इसके बाद मेंटल डिटैचमेंट शुड बी कंप्लीट आफ्टर you your household duties are over, your duty towards your children are over, and then हम्म, after that you should have complete detachment at least mentally। मतलब वो टोटली मतलब ये वाला चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना? तो वो जो जी है ना यहाँ पर कि one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of the home। तो ये जो है ना ये जो आर्टिफिशियल तरीके से कि छोड़ के जा करके वृंदावन में सेटल हो जाओ एंड ऑल दैट, वो दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। हम्म अनलेस यू हैव यू हैव बिकम लाइक धृतराष्ट्र, कम से हम्म कम उस डायरेक्शन में सोचना तो शुरू कर दो आप, तब हम्म जाकर आप यू कैन, है ना, मतलब थिंक ऑफ हम्म, सच थिंग्स, है ना? जी ये जी अदरवाइज क्या नाम है इट इज ऑफ नो यूज। हम्म कोई राधा जी आप पढ़ो 36। जी जी अ, विमृज्य शूणि पाणिभ्याम विष्ट भ्यात्म भ्यात्ममान मात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादा पादावनु स्मरण। Translation: First, he slowly pacified his mind by intelligence, and wiping away his tears and thinking of the feet of his master Dhritarashtra, he began to reply to Maharaja Yudhishthir. यस आगे पढ़ो हाँ। एक मिनट जी। हाँ First, he slowly pacified his mind by intelligence and हाँ, wiping away his tears and thinking of the feet of his master Dhritarashtra, he began to reply to Maharaja Yudhishthir. Yes. है ना?
जी है ना। नेक्स्ट। थोड़ा सा उसने अपना दिमाग लगाया और जी जी बाद फिर अब वो महाराजा युधिष्ठिर का जवाब दे रहे हैं। ओके। जी। संजय उवाच नाहं वेद व्यसितं पितृवः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितो अस्ति महात्मभिः। Translation. Sanjay said, my dear descendant of the Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls. Purport. That great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. It is said that Lord Krishna also advised Yudhishthira to tell a lie before Dronacharya, and it was also for a great cause. The Lord wanted it, and therefore it was a great cause. Satisfaction of the Lord is the criteria of one who is bona fide, and the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one's occupational duty. That is the verdict of Gita and Bhagavatam. Dhritarashtra and Vidur, followed by Gandhari, did not disclose their determination to Sanjay. Although he was constantly with Dhritarashtra as his personal assistant, Sanjay never thought that Dhritarashtra could perform any act without consulting him. But Dhritarashtra going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sanjay. Sanatan Goswami also cheated the keeper of the prison house while going away to see Chaitanya Mahaprabhu, and similarly, Raghunath Dasa Goswami also cheated his priest and left home for good to satisfy the Lord. To satisfy the Lord, anything is good, for it is in relation with absolute truth. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. Such cheating was necessary for a great cause, and there is no loss for any party in the transcendental fraud. समझ में आया करे में? GLE, and there is no loss for any party in some transcendental fraud. यस, अभी समझो इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, उन्होंने अपने जी बारे में भी बताया है। जी जी सी चीटिंग डन इन द सर्विस, ये हायर हायर कॉज कह रहे हैं ना, बट एक्चुअली इट इज हाँ इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हाँ क्या किया युधिष्ठिर ने? युधिष्ठिर ने को कर्म को ने झूठ बोला, किसके लिए? भगवान के लिए। वो भगवान ने कहा था कि तुम बोलो ये, है हम्म कि भाई अश्वत्थामा मरो ना नरो कुंजरो, है ना। हाँ तो वो उसका उन्हें उन्हें कार्मिक रिएक्शन भी हुआ, बट उन्होंने, भगवान ने चूंकि कहा था, हम्म ने किया, है ना। हम्म तो ये बात जो है, उसके बाद में उन्होंने और कई एग्जाम्पल दिए हैं। हम्म उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मैं सनातन गोस्वामी का, ही चीटेड द प्रिजन गार्ड्स, उनको ब्राइब किया, और क्या नाम है, क्योंकि वो जाना था उनको इन द सर्विस ऑफ द, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु, हु इज द इनकारनेशन ऑफ द गॉड, है ना। और उसके बाद में उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया है, क्या नाम है, रघुनाथ दास गोस्वामी। भाई हम्म ये बहुत बड़े, क्या नाम है, समझो राजा टाइप के लोग इनके पेरेंट्स थे, और वो इनको बांध के घर में रखना चाहते थे, लेकिन ये भगवान की सेवा करना चाहते थे, तो ये अपने लोगों को, क्या नाम है, बेवकूफ बना करके और वो निकल गए। तो ये जो है इस टाइप के ट्रांसीडेंटल फ्रॉड्स जो है गलत नहीं है। भगवान के लिए अगर आप एवरी मतलब आप करते हैं तो फिर इट इज ओके। और यहाँ पे लास्ट में जो प्रभुपाद बता रहे हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपनी लाइफ की बता रहे हैं कि इन्होंने मतलब जब 59 ईयर्स की एज में फिर उन्होंने फाइनली अपना घर छोड़ दिया। पत्नी और 3 बच्चे थे, बच्चे क्या थे, बड़े बड़े हो गए थे वो, शायद लड़के की शादी भी हो गई थी या नहीं थी, बट लड़की की नहीं हुई थी। बट ही लेफ्ट होम बिकॉज फॉर द ग्रेटर कॉज, मतलब श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करने और ये करना, इन सब काम के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। ही डिड नॉट बॉदर। तो ये आपके और हमारे क्या नाम है, मतलब मटेरियल माइंड में तो ये लगेगा कि यार ये तो ही वॉज इररिस्पॉन्सिबल, मतलब उन्होंने कर घर। लेकिन क्या नाम है, मतलब यू सी ही वन कम्स टू ए स्टेज व्हेन ही कैन डू दिस मच एंड नो मोर।
एंड व्हेन क्या नाम है, इनकी जो पर्सनल स्थिति थी घर में, वो तो पत्नी तो बहुत ज्यादा अपोज थी इनके, और वो अपने घर में रह रही थी अपने फादर के साथ में, क्या नाम है। तो फिर वो अलग बातें हैं, लंबी बात है उनकी, प्रभुपाद की लीलामृता के केस में है। बट ही लेफ्ट होम। तो अगर आप किसी ग्रेट कॉज के लिए, भगवान, ग्रेट कॉज एक ही है मनुष्य जन्म का, टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बस इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। दिस इज द ओनली कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अर्लियर वी अंडरस्टैंड इट, द बेटर इट इज। इसमें एक चीज रीजा जी हमको और लगती है, क्या लगती है? सत्य और तो लगती है। सत्य है हाँ। कि जब इस तरीके की चीजें आपके मन में आती हैं तो वो स्फुरण भी कहीं भगवान की कृपा से आता है, और फिर उसको करने की दृढ़ता, बल और मेंटल क्लैरिटी भी आपको वो देते हैं। कि कभी कभी हमें एक द्वंद रहता है, करे ना करे, करे ना करे। लेकिन आप देखेंगे कि जो भगवान के कृत्य होते हैं, जैसे इनके रेफरेंस में जिन लोगों को यहाँ मेंशन किया है एज ए युधिष्ठिर एंड ऑल, डायरेक्ट गॉड का ऑर्डर आया था। पर्सनली भी वो उनसे बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे और लोगों की बात है जो नीचे आत्माराम जी लोगों की बात बता रहे हैं, उसमें जो ऑर्डर आता है वो कोई इन पर्सन तो वो नहीं बोलने आए हैं, लेकिन ऐसी तरीके से आता है कि आपका द्वंद्व ही ड्रॉप हो जाता है, फिर आप उसे कर पाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। इसीलिए कह रहा हूं कि जो चतुर्श्लोकी गीता है ना, उसको बड़े ध्यान से सुनो, उसको पढ़ो बार बार, और उसका मनन करो। वो यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अभी तक हम लोग थर्ड वर्ष में पढ़ रहे हैं कि मैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इसको यू मेमोराइज इट, एंड यू, हम्म। द आंसर इज देयर, कंप्लीट आंसर इज देयर। द फर्स्ट हम्म। 2 वर्सेस में क्या आप भगवान के लिए करते हैं, फिर भगवान क्या आपके लिए करते हैं, माय हम्म। गॉड, दैट इज द मोस्ट सबलाइम। हम्म। थर्ड वर्ष अरुण और तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा, तो इस चीज को जी। पता होगा, है ना, हम्म व्हाट द जी। लॉर्ड डज फॉर यू। हम्म। वो तो क्रम है, उन्होंने कहा ना, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मान उपयंती थे, वो आपको बुद्धि योग देते हैं भाई। वाई यू हम्म। वरी। भगवत गीता इज सच ए ग्रेट लिटरेचर, उसका कोई मैच नहीं है। और इसीलिए मैं बीच में ही मैंने आई इंट्रोड्यूस्ड ना, मैं इतने अभी चैप्टर 10 तक जाते जाते तो बड़ा टाइम लगेगा। बट हम्म। चतुर्श्लोकी गीता जो है, ये ये इट इज जैसे ना वो ये, इसको अगर आप समझ लो तो एसेंस ऑफ गीता जो है आपके समझ में आ जाएगा। आई वुड रियली, ये जो है ना, इसके श्लोक को याद करके कभी भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन फाइंड द आंसर इन वन ऑफ द श्लोकास। हम्म। दैट, बस ये तो मेरा मतलब, ये मानने लग गया हूं मैं, हम्म। तो जी। है ना। और यहाँ पर उन्होंने बताया क्या नाम है कि लॉर्ड की सर्विस में वो जो फ्रॉड वर्ड जो है ना, हम लोग तुरंत उसको, मतलब वो तो भगवान तो भाई, अब भगवान ने खुद जो लीलाएं की है, तो जो बेवकूफ लोग हैं वो तो माखन चोर भी थे, रास लीला भी कर रहे थे, तो ये वो हरे हरे क्यों, दोज आर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कर्म है, हम्म थिंग्स कर्म है वो बेवकूफ लोगों के समझने की, उनके लिए है भी नहीं, अनइंटेलिजेंट लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं है। जो अनइंटेलिजेंट है ना, जो जी। जो जो फंसे हुए हैं, तो वो उनका उनको तो है ना, वन शुड लीव देम अलोन, है ना। हम्म का जो मटेरियलिस्ट लोग का साथ भी बड़ा डेंजरस है, हम्म स्पेशली इफ यू आर ए डिवोटी, तो उनका साथ भी डेंजरस है, उनको छोड़। हम्म आगे हम्म, तो जी। 8 नंबर है मेरे ख्याल में, नहीं। हम्म अथा जगाम भगवान भगवन नारद सहतु बरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो भैश्चर्य न मुनिम। While Sanjay was thus speaking, Sri Narad, the powerful devotee of the Lord, appeared on the scene carrying his tumbru. Maharaja Yudhishthir and his brothers received him properly by getting up from their seats and offering obeisances. Purport: Devarshi Narad is described here in as Bhagwan due to his being most confidential devotee of the Lord. The Lord and his very confidential devotees are treated on the same level by those who are actually engaged in the loving service of the Lord.
Such confidential devotees of the Lord are very much dear to the Lord because they travel everywhere to preach the glories of the Lord in different capacities and try their utmost to convert the non-devotees of the Lord into devotees in order to bring them to the platform of sanity. Actually, a living being cannot be a non-devotee of the Lord because of his constitutional position. But when one becomes a non-devotee or a non-believer, it is understood that the person concerned is not in a sound condition of life. The confidential devotees of the Lord treat such illusioned living beings, and therefore they are most pleasing in the eyes of the Lord. The Lord says in the Bhagavad Gita that no one is dearer to him than one who actually preaches the glories of the Lord to convert the non-believers and non-devotees. Such personalities as Narad must be offered all due respects like those offered to the personality of God himself. And Maharaja Yudhishthir, along with his noble brothers, were examples for others in receiving pure devotees of the Lord like Narad, who had no other business save and except singing the glories of the Lord along with his veena, a musical stringed instrument. अब देखो ना, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा परपोर्ट लिखा है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के बारे में अगेन बताया है। Again, he has, when he is writing this, he is reflecting in his own life, है ना। वो बहुत जरूरी भी है, you know, to know and think about a pure devotee. You see, अब वो क्या बता रहे हैं कि नारद जी जो चूंकि वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, इसलिए उनको मतलब भगवान का ही रूप मानते हैं बाकी लोग, तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी। और यहाँ पर नारद जी क्या करते हैं, मतलब वो जो है वो सारे सृष्टि में घूमते रहते हैं लोगों को भगवत ज्ञान प्रदान करने के लिए, है ना। अभी आगे आप जब भागवतम आगे प्रोसीड करेंगे तो नारद जी की कई ऐसे प्रसंग आएंगे। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े, अभी तक ही देख लो ना आप, क्या नाम है, अभी तक ही उन्होंने व्यास देव को ही एनलाइटन किया कि भाई, है ना। तो है ना, ये तो हमारे मॉडर्न मीडिया ने और जो बेवकूफ लोग हैं ना, उन्होंने दे हैव मेड हिम ए फनी फिगर, बट दैट इज नॉट द ट्रू थिंग, है ना। ही इज देवर्षि नारद। तो अब प्रभुपाद जी ने जो अपने बारे में बताया है और ये कहा है ना, अब देखो अब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान को भगवद गीता में आएगा आगे, और यहाँ पर इन्होंने उद्धृत किया है कि nothing pleases him more than the Lord says in the Bhagavad Gita that no one is dearer to him than one who actually preaches the glories of the Lord to convert the non-believers and non-devotees. भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय हैं जो आदमी, क्या नाम है, जो लोग दूसरों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, इवन एट देयर ओन रिस्क। दैट इज क्या नाम है। अब आप कहोगे कि यार एक तरफ तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो नॉन डिवोटीज, जो 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 लोग हैं ना, जो फंसे हुए हैं, उनको क्या नाम है, आप यू लीव देम अलोन एंड ऑल दैट, है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नथिंग प्लीजेस टू हिम, जो, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इन सब बातों में, है ना। आप जो है ना, जो आपको क्या नाम है, जब आप एक बार भगवान के डिवोटी बनने लग जाओगे तो आपको ज्ञान अपने आप मिलने लग जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो बता रहे हैं, देखो ना, एक तरह से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी नारद के फुट स्टेप्स में फॉलो किया है, एंड इफ यू सी इट इज एक्चुअली सो। उन्होंने तो सारी दुनिया में घूमते रहे, 70 साल की उम्र के बाद से जितने साल जिंदा रहे, मतलब 14 बार ही में ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। किस लिए? टू स्प्रेड कॉन्शियसनेस। ही अंडरटूक सो मच, क्या नाम है, मतलब डिफिकल्ट जर्नी, एंड वेंट टू अमेरिका। अमेरिका में हालत ये है कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे अगर मैं भी उतरूं, क्या नाम है, वहां साला समझ में नहीं आता, इज सच ए क्योटिक प्लेस। यानी कि आदमी जो बिल्कुल ही जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है, वो वहां पे चला जा रहा है विदाउट एनी प्लेस टू स्टे। केवल एक लेके किसी एक अनजान, मतलब उन्होंने एक लेटर लिख के दे दिया कि ना कि भाई जाओ वहां पर, वो भी उस शहर में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, बटलर में, पेंसिल्वेनिया में।
और उनको क्या नाम है मतलब ही हैड टू कैच ए बस एंड हम तो कुछ मतलब वी कैनॉट डू इट। हमें 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 समझ में ही नहीं आएगा। तो शहर इतना, पहली बात तो वो जो है ना मतलब आप रोड ही नहीं क्रॉस कर पाओगे वहां पे, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो उन्होंने ये बताया मतलब अपने क्रम है उसके लिए कि क्रम है उन्होंने भी ये काम किया ना, एंड ही एक्चुअली क्रम है मतलब वाज ए प्योर डिवोटी एंड फिर वो भगवान ने उनको दिया क्रम है मतलब जो वही वही जो आपने चतुर्श्लोकी गीता में ना आगे चल के वो दोनों तो ही हैड रियलाइज्ड ऑल दैट। और ये अगर आप और हम भी इसको ऑनेस्टली, इसीलिए कभी इसमें वो नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके आता है और कोई, तो उसको समझाने में अच्छी बात है, भगवान उससे बहुत खुश होंगे। भैया पढ़ के तो देखो, पढ़ के देखो। डोंट रीड भगवत गीता अंड शंड कर में भगवत गीता, बट यू रीड भगवत गीता एज इट इज, वो है उसको पढ़ करके देखो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन वी कैन डिस्कस इट, क्योंकि ये है बड़ा सबलाइम लिटरेचर एंड इट इज द लाइफ मैनुअल। भगवान के में आ करके यहाँ पर उन्होंने उसको दोबारा रिवाइव किया 5,000 साल पहले इन हिज कंपैशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब हम लोग भगवान के अंश हैं। जी। हाँ, आजकल जो बड़ा ना क्रम है मतलब वो लड़के अब लोग अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं अंश विना, नहीं इस टाइप का नाम है नहीं आजकल। तो जिसके अंदर में कि निवांश ये वांश क्रम है मतलब ना प्रियांश है। जी। अब सब अपने है ना अपने अपने नाम के उसके अंश लड़के को क्रम है। तो भैया वो हम लोग जो है ना भगवान के अंश हैं, जो भगवत गीता में ही लिखा हुआ है। तो इस परपोर्ट में एक लाइन जो है वो रीडिस्कसनेबल है। Actually, a living being cannot be a non-devotee of the Lord यस, because of his constitutional position. हाँ मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सच पूछो तो हमारा जीवन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ही सिर्फ डिवोटी बनने के लिए। बट when one becomes a non-devotee or non-believer, it is to be understood that the person concerned is not in a sound condition of life. और जो एग्जैक्ट, नहीं है वो समझ लो जीवन की सही तर्ज पर ही नहीं है। हाँ वो एक्सट्रीम केस ऑफ कंडीशन बीइंग कंडीशन है वो। मतलब यू सी ए सोल व्हेन गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द, मतलब वो पहले रह रहा है क्या मैं वहां पे वैकुंठ में भगवान के साथ, अब उसके अंदर में इच्छा जगी है कि भैया नहीं मैं भी इंजॉय करूंगा, आई विल ऑल्सो। तो वो इस तरह के इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है ना। और वो जैसे ही आता है तो वो कंडीशन तो हो ही गया ना तुरंत। पहली सबसे पहला प्रिजन हाउस उसका होता है मदर का वूम, कंप्लीटली डार्क एंड क्लोज्ड रूम, उसको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। और उसको उस जो मदर के सैक में है वो, तो उसको छोटे छोटे मतलब वो जो है ना मतलब जो उसने वो उसको काटते रहते हैं मतलब, एंड ही कैनॉट इवन क्राई। 9 महीने तक उसकी ये हालत रहती है। बाहर जब निकल के आता है तब भी क्या होता है कि 5 साल जो 2-3 साल तो वो बोल ही नहीं पाता है, रोता है बस खाली। तो मदर को क्या नाम पता चलता है कि क्या नाम हाँ यार ये भूखा है, या क्या नाम है मतलब लाइक दैट यू नो। तो दिस इज द स्टेज ऑफ ए कंडीशन बीइंग, ऐसा रहता है। तो कंडीशन जो है ना, तो इसीलिए भगवान जो है ना उन्होंने आकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो उसकी वही है, बिकॉज ही हैज फेल डाउन। यही वो बताया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ये इटर्नल ट्रुथ है, इसके अंदर में वो देयर इज नो लॉजिक एंड क्या नाम है मतलब वो उसको उस लेवल पे है ही नहीं है। दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द फैक्ट्स है ना। यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं। तो कौन पढ़ रहा है? नाम वेद गति पितुर भगवन क्वा गताविता अम्बा वाहत पुत्रार्था कव गता च तपस्विनी। करेक्ट। Maharaja Yudhishthira said, "O godly personality, I do not know where my two uncles have gone, nor I find my ascetic aunt who is grief-stricken by the loss of all her sons." Purport.
Raja Yudhishthira, as a good soul and devotee of the Lord, was always conscious of the great loss of his aunt and her suffering as an जीजा जी इसका मतलब भी बताइए, प्रोनाउंसिएशन भी बताइए। ऐसे ऐसे एसेटिक का इसका मतलब ये होता है जिसने बहुत बड़ा त्याग किया हो, मतलब जो बिल्कुल सन्यासी की जिंदगी जी रहा हो, त्याग की जिंदगी जी रहा हो, एक्सट्रीम त्याग। तो हम्म। गांधारी जो थी ना, उसने तो अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी, शी वॉज नॉट ब्लाइंड, हाँ हाँ हाँ। मतलब यू सी। तो दैट इज कॉल्ड एसेटिक, क्या नाम है Hmm. मतलब कि बिल्कुल क्या नाम है, जमीन पे सोना एंड थिंग्स लाइक दैट। Hmm. Hmm. And Ritik is never disturbed by all kind of sufferings, and that makes him strong and determined on the path of spiritual progress. Queen Gandhari is a typical example of an ascetic because of her marvelous character in many trying situations. She was an ideal woman as mother, wife, and ascetic. And in the history of the world, such character in the woman are rarely found. ये बात तो वैसे सही है। ये जो बात हम लोग इतनी आसानी से मतलब हम लोगों ने सुनी जब पढ़ते थे या प्रोग्राम देखते थे कि उसके पति जिसको कहना चाहिए कि भीष्म पितामह जी ने चूज किया, इनफैक्ट उनके फादर ने भी मना कर दिया था कि ये तुम कितना गलत प्रपोजल लेकर के आए हो भाई, हाउ डेयर यू। बट उन्होंने जब उनको पति माना तब डे वन से उन्होंने अपने ही आंखों को पट्टी से बांध लिया कि मैं भी वो दुनिया नहीं देखूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल है, यस यस, वेरी करेक्ट, योर एक मेरी ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली नाइस। और ये जो रेयरली वर्ड यूज किया है वो भी सही है, लेकिन अभी भी भाई, मैं अपनी नानी का मैंने एक बार पहले भी बताया है कि उनके हस्बैंड को डायबिटीज हो गया था। तो हम्म। ही वॉज ए मैन, मतलब फ्रॉम गोरखपुर के थे ना, तो गोरखपुर में लोग चावल और आलू और ये चीजें ना बड़ा, मतलब उनको चाव बहुत से ज्यादा खाते हैं। डियर है, बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब राइस और क्या नाम है, मतलब ना और आलू के चोखा और इससे इसके बिना नहीं रह पाते, हम्म। रोते थे, मतलब ही यूज टू क्राई जब उनको डॉक्टर ने मना किया। और तो उनकी मतलब हमारी नानी ने उनको क्या नाम है, मतलब उन्होंने छोड़ दिया चावल और चीनी और आलू, उन्होंने भी छोड़ दिया अपने हस्बैंड के लिए। हम्म। एंड यू नो क्या नाम है, ही डाइड, वो तो 62 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई नाना की, बिकॉज ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। बट नानी क्या नाम है, टिल लाइफ लॉन्ग शी आई थिंक रिमेन्ड 82 और वॉट एवर है, हम्म। शी कंटिन्यूड दैट। तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, शी वॉज अ रियली ग्रेट पायस सोल ना। तो ये भी है। तो यहाँ पर अब इसके बाद में किसका नंबर है? मेरा राजा नंबर है हाँ जी। हाँ। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शिका अथा अथाब भाषी भगवान नारदो मुनि सत्तमा। ट्रांसलेशन: You are like a captain of a ship in a great ocean, and you can direct us to our destination. Thus addressed the godly personality Devarshi Narad, greatest of the philosopher devotee, began to speak. हम्म There are different types of philosophers, and the greatest of all of them are those who have seen the personality of Godhead and have surrendered themselves in the transcendental loving service of the Lord. Among all such pure devotees of the Lord, Devarshi Narad is the chief, and therefore he has been described herein as the greatest of all philosopher devotee. Unless one has become a sufficiently learned philosopher by hearing the Vedant philosophy from a bona fide spiritual master, one cannot be a learned philosopher devotee. One must be very faithful, learned, and renounced. Otherwise, one cannot be a pure devotee. A pure devotee of the Lord can give us direction towards the other end of the nescience. Devarshi Narada used to visit the palace of Maharaja Yudhishthir because the Pandavas were all pure devotees of the Lord, and the Devarshi was always ready to give them good counsel whenever needed. ये मतलब अच्छी बात ये बताई है कलम है कि जो प्योर डिवोटी से सुनना और उनकी बातों को मानना जो है ना, बड़ा जरूरी है। अब सवाल ये हमारे जैसे लोगों के लिए भाई, पांडव और
जो थे युधिष्ठिर, लेड बाय युधिष्ठिर, वो तो दे वर फॉर्चुनेट कि भाई नारद ऋषि आते थे और दे देमसेल्व्स वर प्योर डिवोटीज। और वो लोग तो क्या नाम है, भगवान कृष्ण के टाइम में इटसेल्फ थे। तो अब हम लोग तो भाई, मेरे लिए तो मैं तो यही समझता हूँ कि क्या नाम कि ये इस टाइप के जो परपोर्ट है, इसको पढ़ना इटसेल्फ इज बीइंग इन टच विद ए प्योर डिवोटी। हम्म, बस इसको अपने क्या नाम है, मतलब विद इन ए स्पिरिट ऑफ सबमिशन, बिकॉज लर्निंग इज नॉट पॉसिबल इन क्या नाम है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। हम्म, नो लर्निंग इज पॉसिबल, सो यू बेटर, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, लीव इट, है ना। तो जो है ना, यू कैनॉट अप्रोच भगवत गीता और भागवतम बाय हम्म, बाय मतलब वो अपना मतलब जो मेंटल स्पेकुलेटर्स और ये इस टाइप से क्रम ना, वो ड्राई नॉलेज गेन करने के पर्पज से तो बेकार है, तो इट्स ए वेस्ट ऑफ, है ना। तो हम्म, वन नीड्स टू अप्रोच ए प्योर डिवोटी इन ए मैनर ऑफ कंप्लीट सबमिशन, है ना। हम्म, हाँ, ऑल दो, जी ठीक है ना। तो अब जी क्या सेकंड भी पढ़ना है, एक और पढ़ना है? हाँ हाँ, अभी टाइम है, यस। जी। यही मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, ये पढ़ो पढ़ो। जी। नारद उवाच माँ कंचन शुचो राजन यदीश्वर वंशम जगत लोका सपाला यसे में वहन्ति बलि बलिमिषितु सा संयुक्ति भूतानि सा एव व्युनक्ति च। Translation. हम्म Sri Narad said, O pious king, do not lament for anyone, for everyone is under the control of the Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. It is He only who brings them together and disperses them. Purport. Every living being, either in the material world or in the spiritual world, is under the control of the Supreme Lord, the personality of Godhead. Beginning from Brahmaji, the leader of this universe, down to the insignificant ant, all are abiding by the order of the Supreme Lord. Thus, the constitutional position of the living being is subordination under the control of the Lord. The foolish living being, especially man, artificially rebels against the laws of the Supreme and thus becomes chastised as an asura or lawbreaker. A living being is placed in a particular position by the order of the Supreme Lord, and he is again shifted from that place by the order of the Supreme Lord or his authorized agents. Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Maharaja Yudhishthir, or in modern history, Napoleon, Akbar, Alexander, Gandhi, Subhash, and Nehru, all are servants of the Lord, and they are placed in and removed from their respective position by the supreme will of the Lord. None of them is independent, even though such men and leaders rebel so as not to recognize the supremacy of the Lord. They are put under still more rigorous laws of the material world by different miseries. Only the foolish man, therefore, says that there is no God. Maharaja Yudhishthir was being convinced of this naked truth because he was greatly overwhelmed by the sudden departure of his old uncle and aunt. Maharaja Dhritarashtra was placed in that position according to his past deeds. He had already suffered or enjoyed the benefits of accrued to him in the past, but due to his good luck, somehow or other, he had a good younger brother, Vidur, and by his instruction, he left to achieve salvation by closing all accounts in the material world. Ordinarily, one cannot change a course of one's due happiness and distress by plan. Everyone has to accept them as they come under the subtle arrangement of Kal or invincible time. There is no use trying to counteract them. The best thing is, therefore, that one should endeavor to achieve salvation, and this prerogative is given only to man because of his developed condition of the mental activities and intelligence. Only for man are there are different Vedic instructions for attainment of salvation during the human form of existence. One who misuses this opportunity of advanced intelligence is verily condemned and put into different types of miseries, either in the present life or in the future.
That is the way of supreme control everyone. हम्म। जी। तो यहाँ पर ना मतलब एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं मेरे को, हम्म। हमारा सा, लेकिन हाँ, एक ही बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज जो है श्लोक में ना, ये कह रहा है, डू नॉट लिमिट फॉर एनी वन, फॉर एवरी वन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। मतलब भगवान कर रहे हैं हर एक के साथ में, जो जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, इसलिए ज्यादा दुख मनाने की जरूरत नहीं है। एक एक तो ये बड़ी करने में वो बात कह रहे हैं, डू नॉट लिमिट फॉर एनी वन, फॉर एवरी वन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब अगर आप इसको थोड़ा मनन करना तो आप हम सबको समझ में आ जाएगा कि कोई हम लोग जो है ना अटैच्ड होते हैं ना, अटैचमेंट की वजह से हम्म। नॉट ओनली अपने उसके लिए बॉदर करते हैं कहने में, बल्कि दूसरों का भी दुख अपना दुख बनाने लग जाते हैं, है ना। हम्म। तो वो इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब नहीं कंपैशन नहीं होगा आपके अंदर में, मतलब वो अलग बात है, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नो। वो तो क्योंकि एवरी वन इज इंडिपेंडेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है, देयर फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर लीडर्स कैरी ऑन वर्शिप टू बी वेल प्रोटेक्टेड। इट इज ही ओनली हु ब्रिंग्स देम टुगेदर एंड डिस्पर्सेस देम। तो जो भी हम लोग के ना रिलेशनशिप में, लड़का लड़की, पाप पुत्र पिता एंड ऑल दैट, ये क्या नाम है, दिस इन मतलब ये भगवान का एक वो है जिसके अंदर में दे कम टुगेदर एंड देन दे सेपरेट, देयर इज नो रिलेशनशिप डायरेक्ट अनलेस दे ऑल आर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। वो वाली रिलेशनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो तो बिल्कुल पक्की है। दैट क्या नाम है, मतलब अब ये यहाँ पर जो है ना, मतलब जो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा यार कैसे, बट यू सी, इट इज ओनली दैट दे आर इन योर केयर फॉर ए विंडो। वहां पर आप अपना काम करिए, अब उनको क्या नाम है, जो आपकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करिए, बट यू डू नॉट क्या नाम है हैव, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में भी वो, अगले जन्म में तो ये पॉसिबल भी नहीं है। इफ यू बिलीव इन रीबर्थ, तो फिर आप तो पहले मर जाओगे ना। आपका लड़का और क्या नाम है वो जो है पुत्र तो जिंदा रहेगा, तो आपको रिबर्थ अगर उसके साथ में संबंध ये हो भी सकता है कि आप क्या नाम है, उसका बच्चा ही बनना पड़ेगा ना, जी। उसका लड़का बनना पड़ेगा। यू विल कम अंडर हिज सबऑर्डिनेशन टू सम हम्म। एक्सटेंट। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए पनिशमेंट ओनली। अभी तो आप जो है ना, मतलब यू आर योर मेंटल मेकअप इज, एंड एक्चुअली एक आध कथाएं आएंगी हम्म। उसके अंदर में, मतलब एक राजा चित्रकेतु की कथा आएगी जिसके अंदर में उन्होंने यही समझाया है। वो मतलब उनके बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने आ करके अंगिरा ऋषि ने उनको समझाया कि भाई तुम्हारा नहीं है लिखा हुआ, तुम मत इसके पीछे पड़ो। उनको समझ में नहीं आया, किसी को नहीं आता है, आता ही नहीं है। तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो मतलब लड़का चाहिए, तो उन्होंने उनको, बिकॉज उस जमाने में तो ऋषि मुनि जो थे वो बहुत पावरफुल होते थे, उन्होंने एक बच्चा दे दिया। और उस बच्चे को बड़ी रानी को हुआ वो, क्योंकि वही उन्होंने कहा था ऋषि ने। और बड़ी रानी जब लड़का हो गया, उसका नाम ही उन्होंने लिखा कि हर्ष अशोक, कि वो तुम्हारे को दुख भी देगा और हर्ष भी देगा। एंड यू सी उसकी जो 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 स्टेप वाइफ्स थी, जो बड़ी रानी की, मतलब हजारों लाखों जितनी भी रानियां थी, वो भगवान उनसे ईर्ष्या करने लग गई, उसी बड़ी रानी से, क्योंकि अब राजा जो है पूरा टाइम बड़ी रानी के पास ही रहने लग गया, क्योंकि बच्चा जो था उसी का था। उन्होंने उसको जहर खिला दिया, बच्चा खत्म हो गया। अब तो भाई ये दोनों तो माँ बाप तो खत्म, मतलब देवर तो दे जस्ट फेल डाउन ऑन द अर्थ एंड ऑल दैट, रोने लगे। तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि दोबारा आए उनके पास, उनको बड़ा समझाने की कोशिश की, और ये वो उन्होंने कहा कि, तो उनका अच्छा हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए जिंदा कर देते हैं बच्चे को। तो उस बच्चे ने ज्ञान दिया है कि भैया तुम काहे के लिए रो रहे हो, मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं तुम्हारे से। ये भी पॉसिबल है कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा शत्रु था, इसलिए मैंने इस जन्म में तुम्हारे को दुख देने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। सो इट इज पॉसिबल, जैसे कहना मैं सम ऑफ द, मतलब कोई भी बच्चा जो है ना आपका, कई बार ऐसा होता है कि रियली कष्ट देते हैं ना, मतलब एक आध तो लड़के जो है पीट रहे हैं अपने माँ बाप को, हाँ। पीट रहे हैं कि नहीं पीट रहे हैं, दैट इज ए फैक्चुअल ट्रुथ। आज की डेट में कई जो है अपने माँ बाप को, एनआरआई जो है वो अपने एयरपोर्ट पे छोड़ के साले चले जाते हैं, पूरा मकान कान बेच के
और क्या नाम है एनआरआई को कि मैं अंदर जा करके लेके आ रहा हूँ कुछ कागज या ट्रॉली लेके आ रहा हूँ, उसके बाद कभी आते नहीं है लौट के। वो पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने सब बिकवा दिया, उनका पैसे रिपेट्रिएट कर दिए और वो वहां पे बैठे रहते हैं, या क्या करते हैं किसी ओल्ड पीपल होम के सामने बैठा करके और वो दे गो अवे। ऐसा तो ये यू सी क्या नाम है, इट इज ऑल पॉसिबल, मतलब वो जो है ना उनका जन्म ही पुत्र का ही हुआ है आपको इस टाइप का कष्ट देने के लिए। तो इट इज पॉसिबल। तो ये कहने का मतलब जो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, देयरफॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर लीडर्स कैरी ऑन वर्शिप टू बी वेल प्रोटेक्टेड, इट इज ही हु ओनली ब्रिंग्स देम टुगेदर एंड डिस्पर्सेस देम। अलग अलग हो जाते हैं, मतलब जब आपका ये शरीर जो है ना ओल्ड एंड नॉट यूजफुल एनी मोर, तो फिर यू गेट ए न्यू बॉडी। डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर कि भाई आपको ट्रांसीडेंटल दिव्य शरीर मिलता है या आपको पूरा एक मटेरियल शरीर मिलता है। दैट इज व्हाट इज पॉसिबल। बट जो इस जन्म में आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, मतलब ये बड़ा पेनफुल लग रहा है, लेकिन क्या है कि उनसे आपका कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है। नो, देयर इज नो रियल, एक्सेप्ट ओनली द रिलेशनशिप इज थ्रू द सुप्रीम लॉर्ड। वो हमारी जी रिलेशनशिप है। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, दैट इज व्हाई we treat them in a brotherly fashion. We are compassionate towards them, not only him but each and every soul, even your, ये सब बातें हैं, है ना। तो आई थिंक ना मैं वी आर वेल पास 5:30 है। यस हैं, टुडे वाज जी दिस थिंग। तो जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू।